हेलो डियर लर्नर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में। इससे इससे पहली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होती है और कैसे उसको परफॉर्म किया जाता है। तो आप देखेंगे आपकी जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है, इट इज़ क्वाइट रिजेंबल विद दी सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। सो अगर आपने सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक अच्छे से नहीं पढ़ी है, सो आई वुड सजेस्ट just to go to my channel and you will find the video which is basically telling in detail ki what is basically southern technique. So it is this technique is quite resemble with this technique. There are slight few changes, so let's discuss what is basically uh, northern blotting technique. See, northern blotting technique is basically used to detect the RNA. On the other hand, when you were studying the southern blotting techniques, you have studied that it is basically useful for the detection of DNA. So now this technique is used for the detection of RNA, ribonucleic acid molecule. So इस molecule को detect करने के लिए जो technique use की जाती है वो है आपकी northern blotting technique. Now, as I have already told you, this southern and northern has nothing to do with the direction. It's just named after the discoverer. So the first blotting technique was discovered by the E.M. Southern. That is why the first technique was named after him to give him honor. Later on, this technique, northern blotting technique, it has found out that this technique is very useful for the detection of RNA, and as we know, RNA and DNA quite resembles with each other. So that is why this technique was named like northern blotting technique. So what we do here, the first thing, that means why we use it. So first we use it for the detection of RNA. Now let's understand how do we do that. So basically, first step in the northern blotting technique is exactly same as that of the southern blotting technique, which is extraction and isolation of RNA. So first what you have to do, you have to take a cell and then you have to extract the RNA from the cell. You know that RNA is present in the nucleus. In this technique, we focus on RNA. So RNA, you know that there are different kinds of RNA, rRNA, mRNA. So this kind of technique is basically used more often for the messenger RNA, and messenger RNA is located in the cytosol. So we extract the messenger RNA from the cytosol, and so this is how our first steps complete. Now in the second step, what we do, we transfer this RNA into the agarose gel for the gel electrophoresis so that this RNA can get separated. All right. Now when we do this, now I have drawn this diagram to understand this. The first step is that we have isolated our RNA. Now you can see that RNA is usually a single strand. RNA is like this. Okay, but आरएनए की एक प्रॉपर्टी है दैट आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड है, लेकिन उसके अंदर अपने आप को कॉइल करने की प्रॉपर्टी होती है. सो वेन एवर इट फाइंड्स अ सूटेबल कंडीशन, वो अपने आप को कॉइल फॉर्म में, कंडेंस्ड फॉर्म में रखने की कोशिश करती है, एंड इट लुक्स लाइक दिस. सो नाउ व्हाट वी नीड टू मेक दिस कॉइल्ड आरएनए लीनियर. So in order to make it linear, what we do, we add formaldehyde solution into it. Formaldehyde helps to make this coiled RNA into a linear form. So now what we are doing here, we have taken this RNA and then we are loading this RNA onto the agarose gel. Now you have seen this plate in the southern blotting technique also. यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारे पास एगारोस जेल है, इसमें ये वेल्स हैं जिनके अंदर एगारोस फिल रहता है, प्लस इसमें हमने फॉर्मेल्डिहाइड डाला हुआ है सो दैट हमारा जो आरएनए का होल आरएनए मिक्सचर जाए वो क्या कर सके, वो आपका सेपरेट हो सके, पहले वो अपने आप को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले. तो हमने इसको यहाँ डाला. अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का आपका जो वर्किंग मैकेनिज्म है, इट इज एग्जैक्टली सेम एज दैट वी हैव स्टडीड इन द सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक. यहाँ पर क्या होता है, आरएनए के जो आपके फ्रेगमेंट्स हैं वो अपनी लेंथ के बेसिस पर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं. जो आरएनए सबसे शॉर्ट लेंथ का होता है वो आपका हाई सबसे लंबी दूरी तय करता है. इट कैन माइग्रेट टू दी end of the agarose plate, and the fragment which is having longest length, it cannot travel or it cannot migrate to the more greater length, so it remains very close to the wells. Now after doing this, what we need here, there is a slight change in northern blotting technique, is that after loading the RNA onto the agarose gel, we transfer or blot this RNA onto the different paper. Earlier in the southern blotting technique, we were transferring this agarose gel containing RNA on nitrocellulose paper. Here we are transferring it onto the aminobenzoic filter paper.
Actually, it's not like that ki you cannot use nitrocellulose filter paper. You of course can use it, but it has later been found out that accuracy is increasing when you are replacing the nitrocellulose paper with the amino benzoic filter paper. So in northern blotting technique, we are transferring or blotting these segments or fragments of RNA onto the amino benzoic filter paper. This assembly is same as that of the southern blotting technique. First we have taken a tray जिसके अंदर सबसे नीचे बॉटम पे बफर है, उसके ऊपर आपने स्पॉन्ज रखा है, देन यहाँ पर आपने अपना अगार, ये वाला जो अगार जेल है वो रखा है, जिसमें आपके आरएनए के फ्रेगमेंट सेपरेटेड हो चुके हैं अपनी लेंथ के बेसिस पर. उसके ऊपर आपने अपना रखा है अमाइनो बेंजोइक का फिल्टर पेपर. ऊपर से आपने कुछ पेपर पे वेट्स रखे हैं और आपने कुछ 5 kg के अराउंड वेट रखा हुआ है. सो ऊपर से आपका वेट प्रेशर देगा, नीचे से आपका जो बफर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर की तरफ मूव करेंगे और आपका इस अगारोस जेल को प्रेशर देंगे कि अगारोस जेल पे प्रेजेंट ये जो आरएनए का पैटर्न है या बैंड है ये पूरा का पूरा एड्जॉर्ब हो जाए या पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाए कहाँ पे, आपके इस अमाइनो बेंजोइक फिल्टर पेपर के ऊपर. So after having done that, now it's very easy for you to handle this paper. You cannot handle this agarose gel roughly because agarose gel might break down. तो आपका जब आप डिटेक्शन करेंगे at the end by using X-ray, chances हैं कि प्रॉब्लम हो, आपका एक्यूरेट रिजल्ट ना आए. आफ्टर डूइंग दैट आप ये पेपर को रिमूव करते हैं. अब आपका एक्चुअल स्टेप आता है प्रोबिंग का. नाउ व्हाट इज प्रोबिंग? सी, आपके पास जो ये आपने आरएनए लिया था, इस आरएनए में से कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट होगा जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कंटेन करता होगा. तो आपको इस पूरे के पूरे में से इतने पे इंटरेस्ट है. तो आप मान लीजिए कि ये आपका टारगेट आरएनए है. टारगेट आरएनए का अपना एक बेस का एक सीक्वेंस होगा. लेट्स से आपके टारगेट आरएनए के पास जो बेस का सीक्वेंस था वो था AGGCAG. तो आपने क्या प्रिपेयर करना है, अपने टारगेट आरएनए के इन बेसिस के सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए आपने अपना आरएनए का एक प्रोब तैयार करना है. ठीक है, तो प्रोब के अंदर क्या होगा प्रोब के अंदर आपका इनके कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस होंगे. एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है आरएनए के अंदर यूरेसिल. ग्वानिन का होता है साइटोसिन, सेम एज दैट ऑफ डीएनए. सेम जी का आपका सी हो गया, सी का जी हो गया. एडेनिन विल बाइंड विद द यूरेसिल इन स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए. तो आपने अपना ये प्रोब रेडी कर लिया था. ऑलराइट, सो जब आपने ये ब्लॉटिंग का प्रोसेस कर लिया, आपने ट्रांसफर्स का प्रोसेस कर लिया, अब आप क्या करते हैं, प्रोबिंग करते हैं. प्रोबिंग का मतलब क्या है, आप अपने इस वाले, ये फॉर एग्जांपल ये आपका एक एगारोस का प्लेट था जिसमें आपको अलग अलग आरएनए के फ्रेगमेंट्स मिले थे, मिक्सचर ऑफ आरएनए के फ्रेगमेंट्स मिले थे. इसमें से ये था आपका टारगेट डीएनए जिसका ये वाला न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था. आपने इस सीक्वेंस को कॉम्प्लीमेंट करने वाला प्रोब डाला, द प्रोब विच इज ऑलरेडी लेबल्ड विद द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो कि क्या करेगा, अपने में से रेडिएशन इमिट करके एक मार्क प्रोड्यूस करेगा और उसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इन सब में से यहाँ पर वो आरएनए जो है वो प्रेजेंट है. तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं आरएनए को. सो क्या किया हमने प्रोबिंग करी, हमने मिक्सिंग करी. इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब यूज कर रहे हैं वो इन सब में से सिर्फ उसके साथ ही आपका पेयर करेगा, बाइंड करेगा जिसके बेसिस को ये कॉम्प्लीमेंट करता होगा और वो हमने पहले से डिजाइन किया हुआ है. सो क्या होगा, आप देखिए यहाँ आप देख सकते हैं आपका ये जो आपका प्रोब था विच इज कंटेनिंग द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर विच आर गोइंग टू बाइंड विद द टारगेट आरएनए बेस. नाउ ये आपस में बाइंड करेंगे. ठीक है, जैसे ये बाइंड करेंगे आप अपने इस अमाइनो बेंजोइक फिल्टर पेपर को ट्रांसफर करेंगे एक्सरे प्लेट पर. एक्सरे प्लेट पर आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑन टू द एक्सरे पेपर, इसमें आपने प्रोब में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेबल कर रखा था. तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, दैट दे इमिट रेडिएशन फ्रॉम दैट. तो जब वो अपनी रेडिएशन को इमिट करेगा एक्सरे के प्लेट पर तो कुछ एक मार्क, एक निशान से छोड़ेगा. तो आप जब ऑर्डो रेडियोग्राम रिसीव करेंगे उसमें आप ये फॉर एग्जांपल ये वो प्लेट थी तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस पूरे के पूरे मिक्सचर्स ऑफ आरएनए फ्रेगमेंट में से ये वाला जो था आरएनए ये हमारा टारगेट आरएनए था, हम इसको ढूंढ रहे थे. सो यू कैन इजीली डिटेक्ट द आरएनए विद द हेल्प ऑफ नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. इट इज़ वेरी रिजेंबलिंग विद द सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक. फर्स्ट डिफरेंस इन दोनों टेक्निक में ये है कि सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक डीएनए डिटेक्शन के लिए यूज होती है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक आरएनए डिटेक्शन के लिए यूज होती है.
जो सेकेंड डिफरेंस की बात करें, सदर्न ब्लॉटिंग में आप लोग यूज करते थे NaOH सोल्यूशन फॉर मेकिंग द डबल स्टैंडर्ड DNA इनटू सिंगल स्टैंडर्ड DNA। इन RNA, इन नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, RNA आपका ऑलरेडी सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन आपको उसको कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर से लीनियर फॉर्म में चेंज करना होता है। तो लीनियर फॉर्म में चेंज करने के लिए आप उसमें जो केमिकल डालते हैं वो है फॉर्मेल्डिहाइड। तो अगारोस जेल आपका यहाँ पर क्या केमिकल कंटेन करता है? फॉर्मेल्डिहाइड इंस्टेड ऑफ NaOH। उसके अलावा नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है वो आता है आपका, जो आप ब्लॉटिंग पेपर यूज कर रहे हैं या जो आप ट्रांसफर करने के लिए पेपर यूज कर रहे हैं। सदर्न ब्लॉटिंग में हम यूज करते थे नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर, यहां हम देखते हैं हम यूज करते हैं अमाइनो बेंजोइक फिल्टर पेपर। नाइट्रोसेलुलोज पेपर भी यूज कर सकते हैं, पर नाइट्रोसेलुलोज पेपर जो है वो DNA को स्ट्रांगली अडहेयर करता है, RNA को स्ट्रांगली अपने ऊपर अडहेयर नहीं कर पाता। ये रिजल्ट्स में देखा गया, जब ये 2-3 बार शुरुआती दौर में नाइट्रोसेलुलोज को ही यूज किया जाता था इस टेक्निक में भी, पर उसका जो रिटेंशन था फॉर RNA, इट वॉज नॉट दैट एज गुड एज विद द DNA। सो बाद में उसको रिप्लेस किया गया अमाइनो बेंजोइक फिल्टर पेपर से। तो अमाइनो बेंजोइक फिल्टर पेपर वाज शोइंग ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ होल्डिंग द RNA पैटर्न। तो बाकी उसके बाद सेम है, फिर आपने प्रोबिंग करनी होती है, आपने अपना एक प्रोब डिजाइन करना होता है जिसके पास वो बेस होंगे जो आपके टारगेट RNA को कॉम्प्लीमेंट करते होंगे। ऑलरेडी आप उस प्रोब को एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ या किसी भी केमिल्यूसेंस मटेरियल के साथ, ऐसे केमिकल जो अपने में से ल्यूमिसेंस प्रोड्यूस करते हैं, लाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, उनके साथ आप उसको मिक्स करके अपने मिक्सचर में डालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो ये प्रोब आपके टारगेट DNA के स्ट्रैंड के साथ बाइंड करता है, और आप जब उसको एक्सरे प्लेट के ऊपर रखते हैं तो रेडिएशन, ऑब्वियसली वो रेडिएशन छोड़ेगा, उस रेडिएशन की वजह से एक मार्क आएगा ऑडियो रेडियोग्राम में, और आप डिटेक्ट कर लेंगे कि इस पूरे मिक्सचर में से जो मेरा टारगेट DNA था, टारगेट RNA था, सॉरी, जिसके लिए हम लोग ढूंढ रहे थे, द टारगेट RNA मीन्स द RNA विच इज ऑफ योर इंटरेस्ट। ओके, इतने पूरे के पूरे ये दिस इज द होल RNA। अब इसमें से आपका जो इंटरेस्ट RNA है वो कौन सा है? ये वाला है। तो आप इसको आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। सो आई होप आपको ये इजीली अंडरस्टूड हो गया होगा। If you understood this content, please do share with your friends so that they can also understand this topic, because it is again very important when it comes to the examination, as well as it is very practical and it is very applicable topic. So thank you so much for watching my video.